Hello, hello, hello. So, dear friends and colleagues, very, very good morning to all of you. And I welcome to everybody in this program today for Reward and Recognitions 2011 in Tikona Digital, Kolkata. Together, we are number one. We are delighted to have you all present here and with patience and share your views and discuss in this ceremony so that we can go forward. Welcome to our National Director's Operations, Mr. Jugal Kishore Sharma, and thank you, boss, for being with us today in this beautiful ceremony. And we are also honored that YK's boss is with us today. Okay. So my thanks to all the participants who are from our valuable agencies or valuable challenge partners here. So I welcome to all of them also in this ceremony. I welcome all the team, new members in our team, the frontliner teams who have already joined and ready to take any sort of challenges towards company commitment and goal. Tikona Digital Networks in Kolkata. We have started in Kolkata in 2009 and we have started our operations actually in 2010, launching our service in the month of February. So initially we have faced a lot of challenges and different type. We have, but ultimately we resolve that issues. So we overcome that hurdles and able to achieve the position what we are actually have. We are number one. So guys, that is all for you. There is only we are possible to do that. So that's why I put all of the thanks to all for that. And why we are today here? We will celebrate this program along with the achievers and the champions of the teams, say frontliner sales force teams, frontliner tech executives teams, collection teams, all together. And also we will discuss the next quarter action plans what we are going to take, and so all we will discuss in these programs after reward and recognitions. So you people really prove that winners don't do the different things, but they do the things differently. So thank you very much. So now I would request Suparna to come on the stage and help Jugal was also for Diva and Pujan programs. Welcome, sir. And welcome. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर। We have to work together, then we can achieve everything. That is the foremost thing. There will be somebody, achievers will be rewarded, awarded. This is to have a healthy competition. As a team, we everybody should contribute our best to take our company to new heights. We have started 1.5 years back
in the 2010 February. Now we have crossed 1.5 years. We have come a long way. We have to go far long way, so that together as a network, as a business team, as a collection team, as a individual, all teams, maybe individually different between the teams, but once it comes to our achieving the goal of the company, that we should work together, irrespective of their team, individual team or individual department. So I hope everybody, already we are doing it, and as well as in future also will be doing same way, so that we can take our company to new heights as well as individual achievements, and so that next time also when we come, we should have more and more achievers in these events. I don't want to take much time of you. I request Jugal sir to give his guidance and future about company and business plan to share with you all. Hello? अभी आ रही है. All of you can hear me in the back seat? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशा है. तो पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. तो कहते हैं कि कोलकाता में बंगाल टाइगर है. टाइगर ऐसे बोलता है क्या? गुड मॉर्निंग. अभी भी टाइगर का आवाज नहीं है. तो इसलिए आप क्या करो, सब लोग खड़े हो जाओ. तब मुझे मालूम है, पहले तो मैं अपोलोजाइज करता हूं, मेरा फ्लाइट लेट हो गया. कल रात को मैंने 9:30-10 बजे हैदराबाद का सेम कार्यक्रम खत्म किया, और उसके बाद मैं टीम के साथ बैठा, रात को पार्टी किया उनके साथ, और उसके बाद मुझे 3 बज गया और 5 बजे मेरा एयरपोर्ट जाने का टाइम हो गया. तो मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हूं, और पिछले 3-4 दिन से यही कर रहा हूं हर शहर में जाके, क्योंकि मैं आप सबसे डायरेक्टली मिलना चाहता हूं. हर किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल एग्जीक्यूटिव और कलेक्शन एग्जीक्यूटिव से डायरेक्टली मिलना चाहता हूं. तो मुझे मालूम है कि आप लोग काफी देर से मेरे लिए वेट कर रहे हो, थक गए हो, और इसलिए और ज्यादा थक गए हो कि फील्ड में नहीं हो, कस्टमर्स के साथ में नहीं हो, तो बोर हो गए हो बैठ के, राइट? तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप म्यूजिक में चालू करूंगा और आप सब क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे. और स्टार्ट द म्यूजिक एंड पुट इट लाउड. कुछ पाने की हो आस आस, कोई You have to join in our place. खास आशा है. Turn on the right side. हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार आशा है. तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले आशा है. उम्मीदें हंसेंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशा है. बेसिकली कोलकाता का सफर शुरू हुआ था एग्जैक्टली ऑन व्हाट डेट? 2010 20 फरवरी को, राइट? तिकोना का सफर शुरू हुआ था ऑलमोस्ट 3 साल पहले. पहला कस्टमर हमने एक्वायर किया था 2009 4 मार्च को. तो मैं हिंदी बराबर है, इंग्लिश तो नहीं चाहते हो ना? अंग्रेज कलकत्ता से आए थे, उनको कलकत्ता से भगाना है. सो हिंदी आप सब समझ रहे हो, राइट? सो तिकोना का जो सफर शुरू हुआ था ऑलमोस्ट 3 साल पहले, और जो मेरे नए एग्जीक्यूटिव्स हैं, नए कौन है जो 1 महीने से कम वाले, हाथ खड़ा करो. सो सब जोरदार ताली दीजिए और इनको वेलकम कीजिए. सो ये जो सफर शुरू हुआ था तिकोना का, हमारे एमडी, सीईओ, फाउंडर मिस्टर प्रकाश बाजपेयी, काफी लोग जानते हैं उनके बारे में, टेलीकॉम के एक बहुत
बहुत माना हुआ नाम है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया उन्होंने। तो उनके साथ में हम लोग जो 4 मैनेजमेंट टीम मेंबर्स हैं, 5 में से हम सब ने उनके साथ अपना कैरियर शुरू किया था। मैंने शुरू किया था 17 साल पहले, जब मैंने ज्वाइन किया था तिकोना। हिरम रानाडे जो हमारे सीएमओ हैं, उन्होंने 22 साल पहले ज्वाइन किया था मिस्टर वाजपेयी को, और शंकर राम उन्होंने 31 साल पहले ज्वाइन किया था मिस्टर वाजपेयी को। तो हम सब ने उनके नीचे जीटी से उठ के अपने अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बढ़े आगे। और जब बॉस ने बोला कि यार कुछ करते हैं, कुछ करना चाहिए, आप कुछ करिए, और सब उनको बोलते थे कि आप लोग का इतना एक्सपीरियंस है मिस्टर वाजपेयी को, आप क्यों नहीं अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्यों नहीं इस देश में जो मोबाइल का रेवोल्यूशन आया था सेम तरीके से डेटा का रेवोल्यूशन लाया जाए ब्रॉडबैंड के लिए, इंटरनेट सर्विसेज के लिए। तो फिर जब सर ने अपना आइडिया लगाया, उन लोगों ने हमको मौका दिया बोलने का, बिकॉज हम हमेशा बोलते थे उनसे कि सर जब दोबारा मौका मिलेगा हम लोग सीधे आपके लिए भाग कर आएंगे जहां पर भी हैं। तो हम सब ने अपने अपने, खासकर शंकर राम ने और मैंने, तो हिरम तो शुरू से ही उनके साथ अपने अपने बहुत बड़े बड़े जॉब्स छोड़कर सीधे उनके साथ कूद पड़े। तो ये तिकोना का सफर एक नदी की तरह है। सबसे बड़ी नदी कौन सी हमारे देश की? गंगा। कौन कौन है गंगा किनारे वाला यहाँ पे? अरे सभी हो यार, कलकत्ता में भी तो गंगा है। मेरा मतलब यूपी वालों से नहीं है खाली, या बिहार वालों से, राइट? फॉर्चुनेटली इतनी अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि गंगा शुरू कहां से होती है? जोर से बोलो यार। गंगोत्री से। तो 3 साल पहले तिकोना की गंगा शुरू हुई थी गंगोत्री से। आप तिकोना को एकदम गंगा की तरह समझो। और गंगा का मैं आपको क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों गंगा किस चीज के लिए मानी जाती है? पवित्रता के लिए। हमारा हर काम, हमारी हर चीज, जो हमारी सोच है, जो हमारा डिजाइन है, जो हमारे सेल्स टीम को हम बताते हैं, वो सब चीज में हमें प्योरिटी लानी है और लानी है, राइट? पूरा एथिकल बिजनेस करते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं करते। तो इस तरीके से ये जो हमारी गंगा है, ये शुरू हुई थी 3 साल पहले, और शुरू होके आपको पता है गंगोत्री में जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होके पूरी गंगा बनाते हैं, राइट? और आप समझ लीजिए कि तिकोना की गंगा वो कमंडल में लेके कौन लाया था? भागीरथी। तो भागीरथी कौन है हमारे? मिस्टर प्रकाश वाजपेयी। तो वो उन्होंने शुरुआत की, वो गंगा शुरू में स्टार्ट हुई। तो जब गंगा शुरू में चालू होती है एक छोटे से ग्लेशियर से, गंगोत्री से, तो किसी ने देखा है उधर हिमाचल में या ऊपर जो आपका गढ़वाल एरिया है, कितनी तेजी से गंगा आती है? देखा आप लोगों ने? देखा है? अगर नहीं भी देखा है तो वो पहाड़ों में से जब गंगा निकलती है पतली सी धार के थ्रू में, वही हमारा सफर शुरू हुआ। और हमने अपना पहला फेज बहुत तेजी से कस्टमर एक्वायर करके और कंपनी का नेटवर्क फैला के 36 शहरों में हम पहले पड़ाव पे पहुंच गए। आप ये सोचिए तिकोना की गंगा अभी हरिद्वार पहुंच गई है, और हरिद्वार से इसका सफर तय करना है हमें कहां तक? कलकत्ते तक। क्योंकि इसको इतना बड़ा बनाना है, इतना विशाल बनाना है कि ये इसके लिए समुद्र ही एक जगह रह जाएगी समाने के लिए, और हमें समुद्र की तरह से इस कंपनी को रिवॉल्यूशन की तरह से बड़ा बनाना है। और मैं आप सबके पास, कमलेंदु और रुद्रसेन और पूरी टीम के साथ, एरिया मैनेजर्स एंड एसीज एंड टीज एंड सीज, सबके साथ एक सपना छोड़ूंगा कि अगला 3 महीने बाद जो आरएनआर होगा, अक्टूबर 1 या 2 या 3 को, जो भी आप डेट फाइनलाइज करोगे, उसके लिए ये हॉल छोटा पड़ना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं? गुड। सो यहां से मैं शुरुआत करूंगा आपको और दिखाऊंगा कि गंगा का शुरुआत गंगोत्री से हरिद्वार तक कैसा रहा और हमने क्या किया। सो ओवर टू द जर्नी सो फार। तो who's putting the slides? ऐसा सोचिए आप। तो अभी तक तिकोना ने क्या किया है कि हिंदुस्तान का नहीं बल्कि
पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आउटडोर वाईफाई नेटवर्क क्रिएट किया है। और ये नेटवर्क हिंदुस्तान का नहीं, जैसे मैंने बोला पूरे विश्व का, दुनिया का लास्ट माइल टेक्नोलॉजी वाईफाई यूज करने का लार्जेस्ट नेटवर्क है। और कोई मुझे बता सकता है कि हमारे बाद किसका नंबर है? कोई बता सकता है मुझे कि सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क किसका है? एनीबॉडी? Huawei तो इक्विपमेंट प्रोवाइडर है, साउथ अफ्रीकन कंपनी है। ओके, और बताइए दुनिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी कौन सी है?